Hi guys and welcome back to my channel. I am Rushabh. So as in previous video we discussed regarding how you can start your career into cybersecurity and what are the basic level of knowledge and certification you would require if you want to get a job in cybersecurity domain. So I would recommend अगर आपने वो previous वाला video नहीं देखा है then please go and watch that video first. I will drop the link of that video in the description box below so you can better correlate the previous वाला video and this वाला videos. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग व्हाट आर द डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स अवेलेबल इन साइबर सिक्योरिटी. सो ये डिस्कस करने के पहले लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट नॉलेज और व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन बेसिक टाइप ऑफ सर्टिफिकेशंस यू वुड नीड. सो ये चीज़ मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी बोला हुआ है. सो आई वुड जस्ट ब्रश अप अगेन ऑन दिस थिंग. So talking about the knowledge or the education detail which you will need to possess if you want an entry level job in cyber security. So it is आपके पास बेसिक एक ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है. You need to be a graduate, let it be an engineer, let it be a bachelor's degree like आपने कंप्यूटर से कोई डिग्री किया हुआ है फ्रॉम फील्ड ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ IT, या अगर आपने सिंपल एक BTech भी किया हुआ है but you need some kind of a technicality which is included in your curriculum, like कुछ तो भी टेक्निकल चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले सीखी हुई होनी चाहिए. अदर देन दिस टॉकिंग अबाउट सम सर्टिफिकेशंस, तो ये सर्टिफिकेशन बेसिकली एड ऑन हो जाते हैं आपके प्रोफाइल पे. तो कोई एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन क्या होता है? सो इट कैन बी अ CCNA सर्टिफिकेशन, इट कैन बी अ CEH सर्टिफिकेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ CompTIA, COMPTIA. सो उनका भी एक सर्टिफिकेशन होता है दैट इज़ CYSA प्लस, दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट प्लस. तो ये सब छोटे मोटे एंट्री लेवल सर्टिफिकेशंस हो जाते हैं एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के पास ये बेसिक सर्टिफिकेशंस होने चाहिए. So this all basic things, this basic knowledge and certification will carry some weightage on your profile. So now let's get started with what are the different job roles available in the field of cyber security, or what is the organizational structure that is followed in this field. So let's suppose you are working in some organization. So you will first be taken as a cyber security analyst. Yes, it is obvious कि organization में interns भी हो गए, but whenever this intern completes their internship periods, like suppose 3 months, 4 months और 6 months, तो उनको जब भी ऑन बोर्ड किया जाता है और when they are taken on roll, so they will be taken as a cyber security analyst only. तो cyber security analyst एक beginner level, very basic level का रोल हो जाता है in any organization. So what will you be expected to work as a cyber security analyst? So suppose आप एक टीम में काम करते हो that is SOC. What basically SOC is? It is a security operation center. नहीं ये नहीं बाबा, ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना है अपने को. सो SOC सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बेसिकली क्या होता है? उसमें बेसिकली वी एनालाइज, वी मॉनिटर रियल टाइम थ्रेट्स टू एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे इन सम अपकमिंग वीडियोज़. सो इसमें बेसिकली व्हाट एन एनालिस्ट डू इज़ we basically monitor real time logs and we make a report on it. So once we make a report on it, we share it with some upper level guys. So it may be an associate consultant, it may be a consultant. So we will come upon it in this later part. Okay, so समझो कि आप एक SOC टीम में काम कर रहे हो and you monitor the real time feeds of that system. Or for example you are working as a threat analyst or threat intelligence analyst, or you might be working as a penetration tester or IAM team like me. सो ये हो गए बेसिक चीज़ें व्हाट अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट माइट बी वर्किंग अपॉन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो SOC में कैसा होता है ना, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. सो SOC में हो सकता है लेवल 1, 2 and 3. तो ये जो SOC लेवल 1 का जो सीन आता है, SOC लेवल 1 इज़ वेरी जूनियर काइंड ऑफ अ पर्सन इन एनी रोल. सो SOC लेवल 1 में क्या करता है? दे बेसिकली मॉनिटर डे टू डे थिंग्स, डे टू डे लाइव अटैक्स एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड सेंड इट टू देयर अपर मैनेजमेंट और whomever दे आर रिपोर्टिंग इट टू. सो ये एक बेसिक चीज़ हो गया रिलेटेड टू SOC. बट येस इट इज़ ऑब्वियस कि सपोज एग्जाम्पल हो गया बिग 4 रिलेटेड, कि बिग 4 में SOC के लेवल्स है 1, 2 and 3. कोई मिड साइज कंपनी है उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई SOC में 3-4 लेवल है. डायरेक्टली SOC में एनालिस्ट होगा, एनालिस्ट से प्रमोट होकर वो जाएगा एसोसिएट कंसल्टेंट.
सो दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग ऑन. सो ये हो गया रिलेटेड टू सॉक. सो सिक्योरिटी एनालिस्ट के बाद आते हैं एसोसिएट कंसल्टेंट और कंसल्टेंट. सो अगेन दिस डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा कि एनालिस्ट है ही नहीं, डायरेक्टली एसोसिएट कंसल्टेंट्स है एंड कंसल्टेंट है. तो एनालिस्ट के बाद आ गया हमारा एसोसिएट कंसल्टेंट एंड देन कम्स द कंसल्टेंट. सो व्हाट दिस टाइप ऑफ पीपल वर्क एज. So basically they will be your first seniors. So they will manage the client side communication and client side related things like implementation team or configuration team or monitoring teams are sending the reports to this team or to this associate consultants or consultant. So if there are any escalation related to the reports which are being sent by our organization to the client, so they are the people who will be handling this escalation first. And if this escalation is getting further escalated, then the managers and all comes into picture. तो ये escalation क्या होता है, escalation की होता है, like just a small example I would like to give here is, suppose आप काम कर रहे हो SOC में and there is one P1 incident which has been triggered. P1 क्या होता है, it is very major kind of an incident which is or major attack which has been done on that organization. तो ये P1 incident को आपको attend करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है विद इन फ्यू मिनट्स, लाइक 10 to 15 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज SLA. आपको वो इंसिडेंट पे काम करना ज़रूरी हो जाता है टू एनालाइज दैट इंसिडेंट वेदर इट इज़ अ फॉल्स पॉजिटिव इंसिडेंट और इट इज़ अ रियल अटैक विच इज़ बीन डन. सो अगर सपोज कि एक क्लाइंट ने पहले ही नोटिस कर लिया है और आपने ये नोटिस नहीं किया, दैन दिस थिंग्स गेट एक्सकेलेटेड and then the associate consultant or consultants handle this escalation and report it to their managers. So this is how the associate consultants and consultant work. So SOC में भी अभी कैसा हो जाता है, there might be an in-house SOC. तो in-house SOC क्या हो जाता है, suppose there is an XYZ organization, तो वो XYZ organization का अपना एक खुद का SOC होगा which will be monitoring their own attacks. मतलब वो कंपनी का ही उनको attacks और threats उनको analyze करना है that the organization is safe. और एक टाइप का SOC आ जाता है जिसमें आई एम वर्किंग इन सम XYZ कंपनी एंड आई हैव सम क्लाइंट्स हु आर वर्किंग विद मी. सो मैं वो क्लाइंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि उनका ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास सेफ है. आई हैव टू मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप देयर ऑर्गेनाइजेशन सेफ. तो दो टाइप के SOC इधर पिक्चर में आ जाते हैं. दैट इज़ वन इज़ इन हाउस SOC और एक SOC होता है जो क्लाइंट के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है. सो एसोसिएट कंसल्टेंट्स एंड कंसल्टेंट्स के बाद आते हैं हमारे मैनेजर्स. सो मैनेजर्स आर द वन हु एक्ट्स एज अ जॉइंट और हब between the two different teams or a client and their basic base level of team. So managers के पास basically multiple clients या multiple responsibilities होता है. And upon managers there might be associate directors or director or managers might be directly reporting it to CISOs. So CISOs are the topmost level in the field of cyber security. So what is basically CISO is, it is Chief Information Security Officer. So CISO might be responsible of the whole picture and whole team up to the base level in cyber security. And ये CISO जाके report करते हैं directly to CEO or their board members. So again this might completely differ from an organization to organization. So कोई एक organization में ऐसा fixed dedicated flow नहीं होता है कि समझो कि manager के बाद आ गया directly CISO. इट माइट डिफर लाइक मैनेजर के बाद एसोसिएट डायरेक्टर आ सकता है या डायरेक्टर आ सकता है एंड देयर माइट बी अ CISO. सो दिस पिक्चर वुड कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग ऑन. सो दिस इज़ बेसिकली अ जस्ट ऑफ इट ऑल कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से रोल होते हैं रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी. सो द फर्स्ट वन कम्स इज साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, देन कम्स इज एसोसिएट कंसल्टेंट, द थर्ड वन इज कंसल्टेंट. और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एग्जीक्यूटिव्स भी हो सकते हैं. देन कम्स द मैनेजर, मैनेजर के ऊपर हो सकते हैं आपके एसोसिएट डायरेक्टर और डायरेक्टर एंड देन द टॉप मोस्ट लेवल इज CISO, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. सो आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से पाथ में जाना है. सो आपको कौन सा पाथ ज़्यादा पसंद है. सो सम माइट बी इंटरेस्टेड इन लॉग मॉनिटरिंग, देन यू कैन गो फॉर अ SOC मॉनिटरिंग, दैट इज Security Operation Center. There you will need to monitor the real-time logs and fields which are coming from the client's location or within your in-house SOC. अगर आपको implementation ज़्यादा adventurous लगता है then you can go for implementation team as well. अगर आपको hacking related कुछ करना है then you can go for penetration tester. You can work with pen testing team. उधर आ जाते हैं आपका red teaming and blue teaming.
अदर देन दिस समझो आपको कोई टेक्निकल चीज़ ना करना, आपको टेक्निकलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, देन यू कैन वर्क एज अ थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट और थ्रेट हंटर. सो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, यू विल हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन डार्क वेब. आपको डार्क वेब एनालिसिस करना है, आपको डे टू डे अटैक्स पर रिपोर्ट बनाना है, एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट इट कि ये रिसेंट अटैक्स है. सो दिस इज़ द जॉब ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट और थ्रेट हंटर. सो एट द एंड मैं इतना ही बोलूँगा कि साइबर सिक्योरिटी में सबके लिए कुछ ना कुछ है. साइबर सिक्योरिटी इज़ फॉर एवरीवन. यू हैव टू चूज़ कि आपको कौन से डायरेक्शन में आपका करियर बनाना है. सो आपको ऐसा नहीं कि साइबर सिक्योरिटी में इतना ही है. देर इज़ एन नंबर ऑफ थिंग्स फॉर ईच एंड एवरी वन. साइबर सिक्योरिटी सबके लिए है. पर येस, मेरा इधर एक रिकमेंडेशन होगा कि सपोज़ आपको कोई सॉक टीम में काम करना है, या सपोज़ कोई और एग्जांपल लेते हैं, आपको डेटा सिक्योरिटी में काम करना है, तो मेरा सजेशन ऐसे होगा कि इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ डेटा सिक्योरिटी एनालिस्ट या डेटा सिक्योरिटी टीम में आपको काम करना है, देन डोंट जस्ट गेट फोकस्ड ऑन वन थिंग कि मेरे को बस इम्प्लीमेंटेशन ही करना है, या मेरे को मॉनिटरिंग ही करना है. समझो कोई नियर फ्यूचर में डेटा सिक्योरिटी का फील्ड बंद हो गया, ठीक है, या डोंट बी जस्ट टाइड अप विद सम प्रोडक्ट स्पेसिफिक गाइज. कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक गाय मत बनो कि डेटा सिक्योरिटी में मैं कैफे रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे ही काम करूँगा, या मैं सीमेंटेक प्रोडक्ट पे ही काम करूँगा. ऐसा मत करो. आगे जाके कोई समझो सीमेंटेक का प्रोडक्ट बंद हो जाता है, देन योर फील्ड विल गेट नैरो. आपका फील्ड ब्रॉड रखो कि मैं डेटा सिक्योरिटी में काम करूँगा, पर मेरे को सॉक में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं सॉक भी कर सकता हूँ. देन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट विल बी ब्रॉडन. आपकी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ जाएगी टू गेट अ बिगनर लेवल जॉब इन साइबर सिक्योरिटी. सो एक चीज़ है कि साइबर सिक्योरिटी में कभी आप मास्टर नहीं बनने वाले हो. यू विल ऑलवेज बी अ लर्नर. आपको रोज़ रिसर्च करना है, रोज़ आपको कुछ नया सीखने मिलेगा. सो दिस वॉज जस्ट अबाउट हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड इन साइबर सिक्योरिटी, और आपको कौन से जॉब रोल ऑफर हो सकते हैं एज अ बिगनर एंड इंटरमीडिएट लेवल. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, एंड इफ यू हैव सम फ्रेंड्स हु आर लुकिंग टू गेट स्टार्टेड विद साइबर सिक्योरिटी करियर, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. We will meet you soon in the next video with some exciting contents and exciting information. Till then, subscribe to this channel. We will meet you soon in the next one. Bye bye.